Hello everyone, this is Anchal Sharma and I welcome you all to Gyan Sagar Institute. Guys, as you all know that we have started a new batch for RMS, SENIC and RIMC. In my previous video, I have already informed you all about RMS entrance system. So in this video, I'll be discussing everything in detail about RIMC, that is Rashtriya Indian Military College. So let's start from the first slide. This is regarding RIMC, Rashtriya Indian Military College. The full name is, as mentioned here. Dear parents and students, the location of this college is Dehradun, which is in Uttarakhand. Again, if I talk about the objective, then I have already discussed the objective of these schools in my previous video. That objective of RIMC is also to provide all-round education and training to young students. Students means both boys and girls. I'm mentioning again, this is for both boys and girls to prepare them for the National Defense Academy. Means all those students who are willing to go for defense need to appear and go through these processes. Or yes, it is not necessary, but yes, this is a good opportunity to make your career. Wait, yes, the status is that it is an inter service category a grade A establishment administered through the director general of military training army and army headquarters. ठीक है, this is just कि ये body कौन सी है. Next it says, let's talk about the eligibility criteria, like who all kids can are eligible to give the exam. बच्चे जो एंट्री होती है RIMC में वो होती है 8th क्लास में. मींस जो आपकी एडमिशन होती है दैट इज इन 8th क्लास. Both boys and girls both can apply for this paper. The minimum qualification, educational qualification for this exam should be either the student is studying in class 7th, 5, 6, 7, this is 7th, or have passed class 7th from a recognized school at the time of admission. मतलब जब आपका एडमिशन होने वाला है RIMC में, तो either you have already done your 7th or you are studying in your 7th class. ठीक है. Age limit of the candidate should be between 11.5 to 13 years. 11.5 से 13 साल तक का बच्चा जो है इस पेपर को अपीयर कर सकता है. If I talk about the coming cycle of January 2027, means जो admissions January 2027 में होनी है, उस साल के बच्चे के लिए the kid should be not before Jan 2nd 2014, मतलब वो Jan 2nd 2014 से पहले नहीं होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, एंड नॉट born later than July 1 2015. So this is the criteria. आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहां से चेक कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एडमिशन साइकिल. सो गाइस, जो एडमिशन होती है RIMC में वो साल में 2 बार पेपर लिया जाता है और 2 बार इनटेक होता है. ठीक है. मींस अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 स्टूडेंट्स एवरी 6 months. ठीक है. तो उनका जो मैक्सिमम स्टूडेंट है दैट इज रेंजिंग between 50 to 60. फॉर जनवरी टर्म के लिए एंट्रेंस एग्जाम इज इन जून प्रीवियस ईयर. मींस अभी हमें wait, let me tell you. For example, अभी हम Jan 2027 की एंट्री की बात करेंगे, जिसके लिए जून 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा. अगर हम जुलाई 2027 की टर्म की बात करते हैं तो जो एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में कंडक्ट होगा. मींस अभी हम 2 पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं, जून 2026 के एग्जाम की एंड दिसंबर 2026. ठीक है. इस इनटेक में भी वो 25 to 30 स्टूडेंट्स को लेते हैं और इस इनटेक में भी 25 to 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है वो एडमिट किए जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम. ऑब्वियसली जो अभी अपकमिंग एग्जाम कौन सा है, जून 2026 फॉर एडमिशन इनटू जनवरी 2027
टर्म के लिए जो पेपर है वो जून 2026 में हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? द स्टेज वन is all about the written examination. This is the written examination. All India level का पेपर होता है, in which English is of 125 marks for 2 hours, Mathematics is for 200 marks for 1.5 hours, and General Knowledge का पेपर जिसमें 75 marks का पेपर है, that is for 1 hour. ठीक है, तो ये 3 पेपर होते हैं इसमें. Stage 2 is Viva Voice. जो बच्चा इस पेपर को क्लियर करता है, that student will be asked to come for the interview. Okay, so what is the important rule of written exam? That candidate must secure at least 50% marks in each subject. हर सब्जेक्ट में बच्चे के कम से कम 50% होने चाहिए. मतलब 50% ऑफ 125, 50% ऑफ 200 एंड 50% ऑफ 75 मिनिमम होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स में उसने 99% ले लिए बट जीके में उसके 49% है, तो वो डिसक्वालिफाइड है. इंटरव्यू के लिए वो बच्चे को बुलाया नहीं जाएगा. ठीक है. So let's come to the stage 2. This is interview stage. Interview stage जो है वो हमारी 50 marks की है. Only those candidates who qualify the written examination in stage 1 will be called for the interview. ठीक है. और इसमें फोकस रहता है, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल चेक होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कम्युनिकेशन, उसका कॉन्फिडेंस चेक होता है, जिसके बेसिस पे वो इंटरव्यू अपना क्लियर करता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्वियसली द थर्ड स्टेज, medical, very important for defense personals. Candidates who clear the interview undergo a medical exam. जो ये इंटरव्यू क्लियर करते हैं, those students kids are called for medical examination. और ये मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होता है? मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है. They must be medically fit as per the RIMC standards. उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, सिस्टम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जिसके बेसिस पे आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा. ठीक है. Next is, yes, application process. Although जो जब भी application या notification आएगा, will be informing you regarding the same, but still let me disclose certain things. जो मोड है पेपर भरने का, RIMC का पेपर भरने का जो मोड है, that is offline mode. What happens is, एक prospectus कम application form RIMC से एक बुकलेट मिलती है. ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी होते हैं, मतलब एक सैंपल पेपर टाइप भी होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसकी सिंगल कॉपी होती है एप्लीकेशन फॉर्म की. ठीक है. आप पेन से वो एप्लीकेशन फॉर्म, पेंसिल व्हाटएवर से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एंड देन यू हैव टू सेंड दैट एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है. आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म किसको भेजना है? डायरेक्टली टू दी स्टेट गवर्नमेंट, मींस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को वो पेपर जाएगा. आप उस पेपर को RIMC देहरादून में नहीं भेजेंगे. ठीक है. तो ये सारा प्रोसीजर, जो वो प्रोस्पेक्टस जो आपको मिलता है, उसमें सब कुछ क्लियर टर्म्स में लिखा जाता है. ठीक है. मोर ओवर, जब भी ये बुकलेट आएगी, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे, तो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन मोर डिटेल. ठीक है. तो आप घबराइएगा ना मत इस चीज को लेकर, हम आपको हर चीज की डायरेक्शंस देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट वन इज बर्थ सर्टिफिकेट. ठीक है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर बच्चा किसी कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट. प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, मतलब वो स्कूल से स्कूल सर्टिफिकेट हो गया. और बच्चे का आधार कार्ड जो है वो कंपल्सरी है. ठीक है. नेक्स्ट वन, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस की अगर बात करते हैं, तो वी नो कि जो हमारा बच्चा है वो 8th क्लास के लिए एडमिट होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पेपर है वो 7th लेवल, लास्ट क्लास उसने जो पढ़ी है वो 7th लेवल पढ़ी है, तो जो एग्जाम का लेवल होगा दैट विल बी 7th, हाई डिफिकल्टी लेवल. एग्जाम्पल, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, जो हम प्रॉपरली करवाएंगे बच्चे को बैच में. इंग्लिश की बात करो तो ऐसे राइटिंग, लेटर, कॉम्प्रिहेंशंस,
vocabulary part and complete grammar will be there. ठीक है. Next is, if I talk about general knowledge, then history, geography, Indian constitution, means polity, sports, current affairs, everything will be covered. Everything will be covered in detail during the batch. ठीक है. This is the overview of the syllabus. Next one is, yes, what are the important facts or we need to know? What are those things? बच्चे, अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स whosoever are watching the video, जनरली हर स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है. एक बच्चा नहीं, बॉय. इफ आई टॉक अबाउट बॉयज, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है. बॉयज के लिए ओनली 1 सीट पर स्टेट फॉर बॉयज. ठीक है. हर स्टेट से एक लड़का सेलेक्ट होगा, अगर मैं बॉयज की सीट की बात कर रही हूँ. और जो थोड़ी लार्ज स्टेट है, कोई बड़ी लार्जर इन एरिया एंड पॉपुलेशन है, उसमें से 2 सीट्स कवर होंगी. ठीक है. अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूं तो ऑल ओवर इंडिया से ओनली 5 गर्ल्स आर सेलेक्टेड. ठीक है. तो मतलब जो टोटल सीट है अक्रॉस इंडिया फॉर गर्ल्स, इट इज 5. ठीक है. फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली एनुअल फीस इज अराउंड 1.5 लाख फॉर जनरल, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स. ठीक है. There will be no negative marking. There will be no negative marking in your paper, but yes, obviously accuracy is essential. हम अगर accuracy से करके आएंगे, accuracy पे stress देंगे, तभी पेपर के clear होने के chances होते हैं. ठीक है. So guys, I need to tell you that we have already announced our batch for SANIC, RMS and RAMC. The batch is being commenced from 23rd of March 2026. ठीक है. We do have 2 provisions. Either the student can join us for full day or he or she can join us only for evening batch. ठीक है. For further information, you can contact the number mentioned in the slide, and here is the address of Gyan Sagar Institute. So guys, all the best. Whosoever wants to join the course may contact. Thank you.